everyone, this is Nidhi and welcome back to my channel all about law. So continuing our series of videos related to Sale of Goods Act, today I am back with another video in which we are going to discuss about the various modes of delivery of goods. Okay. Now in the previous videos we have understood what is a sale. Okay. A sale is a contract in which the seller transfers or agrees to transfer the ownership of the goods to the buyer for a consideration which is known as price. Okay, so buyer goods की delivery लेता है, seller उसे goods deliver करता है for a consideration known as price. तो this is in simple terms sale. Now sale के अंदर दो important elements होते हैं. One is transfer of ownership and another one is transfer of possession of goods. ओके अब कितनी बार क्या होता है many times when the sale actually takes place, it is not necessary that the possession of goods will be transferred immediately to the buyer. Okay, many times the goods are transferred or the possession of goods is given to the buyer at any particular futuristic date or any date which is agreed between both the parties. Okay, so the possession of goods can be either at the time of sale only or it can be at any other date which is being decided by both the parties. Okay, so this is very important term in the process of sale. Now, when we talk about delivery of goods, तो delivery का मतलब होता है delivery means voluntary transfer of the possession of goods to the buyer. ओके इंपॉर्टेंट है कि voluntary transfer होना चाहिए. तो सेल के अंदर क्या होता है गुड्स की डिलीवरी होती है. इट मीन्स गुड्स आर voluntary transferred from the seller. किसके पास होते हैं गुड्स पहले सेलर के पास. तो सेलर के पास से गुड्स किसके पास जा रहे हैं बायर के पास. तो इसे हम क्या बोलेंगे डिलीवरी ऑफ गुड्स. तो डिलीवरी ऑफ गुड्स कैन टेक प्लेस in three manner. Okay, delivery of goods can take place in three manner. तो जो modes of delivery of goods हैं वो हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं. Okay, so let's move on to our video. Now modes of delivery of goods की जब मैं बात करती हूँ तो three modes हैं actual delivery, symbolic delivery and constructive delivery. The first one is actual delivery. As the name itself suggests, actual delivery का मतलब होता है when the goods are physically transferred from the seller to the buyer. Okay, physically goods को जब seller buyer को transfer कर देता है, buyer को hand over कर देता है, तो it is known as actual delivery. Very simple. In our day-to-day life, we enter into n number of contracts. Okay, अगर मैं fridge purchase करने जा रही हूँ and the seller is delivering the refrigerator to me, he is actually giving the physical possession, it is known as actual delivery. आप पेन परचेज करने जा रहे हैं, वेजिटेबल्स परचेज करने जा रहे हैं, फ्रूट्स परचेज करने जा रहे हैं, एनी आइटम यू आर गोइंग टू परचेज एंड इमीडिएटली सेल के टाइम पर ही एज सुन एज यू आर पेइंग द प्राइस, आपको अगर गुड्स की डिलीवरी मिल रही है, फिजिकली आपको गुड्स आपके पास मिल रहे हैं, देन इट विल बी नोन एज एक्चुअल डिलीवरी. वेरी सिंपल. सेकेंड डिलीवरी की हम बात करें तो इट इज नोन एज सिंबॉलिक डिलीवरी. नाउ एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इट इज सिंबॉलिक. इसका मतलब फिजिकली एट द टाइम ऑफ सेल गुड्स की डिलीवरी नहीं हो रही है. Now many times what happens when the nature of goods is basically goods are of bulky nature or they are voluminous. Okay, it is not possible for the seller to hand over the goods immediately at the time of sale. Okay, जब goods बहुत bulky होते हैं and they are not very easy to handle, then in many cases क्या होता है कि symbolic delivery की जाती है. सपोज द गुड्स आर इन बल्की नेचर. ठीक है, सपोज ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. ए इज गोइंग टू सेल सपोज 100 लीटर्स ऑफ मिल्क टू बी. अब 100 लीटर्स ऑफ मिल्क अगर इमीडिएटली ए उसे हैंड ओवर नहीं कर पा रहा है एंड सपोज दैट मिल्क इज एट हिज वेयर हाउस, तो ए ने क्या करा बी को उस वेयर हाउस की कीज हैंड ओवर कर दी. ओके, कि यू कैन टेक दिस मिल्क 100 लीटर्स ऑफ मिल्क फ्रॉम दैट वेयर हाउस. तो इसे क्या बोला जाएगा सिंबॉलिक डिलीवरी, जहां पर गुड्स एक्चुअली बायर के पास हैंड ओवर नहीं किए जा रहे हैं, रेदर कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है जिसके थ्रू वो गुड्स की डिलीवरी लेने वाला है. तो या तो कीज हैंड ओवर कर दी या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई बिल रेज कर दिया या फिर कोई टाइटल डॉक्यूमेंट इशू कर दिया जिसके अगेंस्ट वो किसी पर्टिकुलर डेट पर गुड्स की डिलीवरी ले लेता है. तो इट इज नोन एज सिंबॉलिक डिलीवरी. ओके, देन वी मूव ahead to constructive delivery. जो थर्ड मोड ऑफ डिलीवरी है वो है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और फिक्टिशियस डिलीवरी, और इट इज ऑल्सो नोन एज डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट. अटॉर्नमेंट का मतलब क्या होता है जब आप किसी को पावर देते हो. ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी होता है. तो वैसे ही अटॉर्नमेंट का मतलब है जब आप किसी और को पावर दे रहे हो. तो कितनी बार सेलर क्या करता है अपना कोई एजेंट अपॉइंट कर देता है या फिर सेलर के पास गुड्स नहीं होते हैं, रेदर वो गुड्स
उसने किसी को बेलमेंट किए हुए होते हैं। तो उन केसेस में अगर वो बेली को या फिर अपने एजेंट को ऑथोराइज कर रहा है टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, देन इट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव और फिक्टिशियस डिलीवरी। फॉर एग्जाम्पल, द गुड्स आर नॉट विद द सेलर। मैं रेफ्रिजरेटर परचेज करने गई एंड वो रेफ्रिजरेटर सेलर के पास नहीं है। मैं 10 रेफ्रिजरेटर्स परचेज करने गई हूँ एंड वो उसके शॉप पर अभी अवेलेबल नहीं है। वो रेफ्रिजरेटर्स अवेलेबल हैं उसके गोडाउन या फिर वेयर हाउस में। ठीक है, तो वेयर हाउस कीपर या जो गोडाउन का इंचार्ज है वो यहाँ पर बेसिकली क्या है, एजेंट या फिर बेली, बिकॉज ही इज होल्डिंग द गुड्स, ही इज होल्डिंग द रेफ्रिजरेटर्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर। ठीक है, तो उसके पास में पावर है सेलर के अगेंस्ट या सेलर के बिहाफ पे उन्हें गुड्स को होल्ड करने का। तो सेलर ने उस पर्टिकुलर वेयर हाउस इंचार्ज को या गोडाउन इंचार्ज को ये ऑथोराइज किया है कि वो गुड्स की डिलीवरी मुझे करेगा। तो यहाँ पर ये डिलीवरी ना तो एक्चुअल डिलीवरी है ना ही सिंबॉलिक है। क्यों? क्योंकि मुझे कोई कीज या इंस्ट्रूमेंट नहीं इशू किया जा रहा है, रेदर मैं उस वेयर हाउस पे जाऊंगी जहां पे वेयर हाउस इंचार्ज मुझे उन गुड्स की डिलीवरी देगा ऑन बिहाफ ऑफ सेलर। तो सेलर ने किसी पर्टिकुलर पर्सन को, जो कि एजेंट या बेली हो सकता है, उसे ऑथोराइज किया है कि वो बायर को गुड्स की डिलीवरी करेगा। तो दीज वर द 3 टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स which are commonly practiced whenever it comes to any contract of sale. I hope you understood the video and please stay tuned for more upcoming videos. Till then, have a nice day and please take care. Bye.